மகாராஷ்டிராவில் பள்ளிகளின் மூன்றாவது மொழியாக இந்தி கட்டாயம் என்ற அரசாணை ரத்தானதை தொடர்ந்து தாக்கரே சகோதரர்கள் தற்போது வெற்றி கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். இதுகுறித்த கூடுதல் தகவல்களை வழங்குவதற்காக செய்தியாளர் பால்முருகன் இணைப்பில் இருக்கிறார். வணக்கம் பால்முருகன். கிட்டத்தட்ட 20 ஆண்டுகளுக்கு பிறகாக ஒரே மேடையில் இரண்டு சகோதரர்களும் வெற்றி கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். குறிப்பாக இந்தி திணிப்புக்கு எதிரான பெற்ற வெற்றி கொண்டாட்டத்தில் உங்களுடைய தகவல்கள் என விரிவாக பதிவு பண்ணுங்க. அதாவது மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் இந்தி திணிப்புக்கு கடுமையான எதிர்ப்பு கடந்த சில மாதங்களாகவே நிலவியது. முதலில் தமிழகத்தில் தான் இதற்கான எதிர்ப்பு குரல் தொடங்கியது. அதனைத் தொடர்ந்து மகாராஷ்டிராவிலும் கடுமையான எதிர்ப்பு நிலவியது. புதிய கல்விக் கொள்கையின் அடிப்படையில் 3வது மொழியாக இந்தியை கொண்டு வர வேண்டும் என்று ஒன்றிய அரசு தெரிவித்ததற்கு மாநிலத்தில் கடும் எதிர்ப்புகள் கிளம்பியது. மாநில பாஜக அரசு அதனை அமல்படுத்துவதற்கான அரசாணை வெளியிட்டாலும் பல்வேறு கட்சிகள், குறிப்பாக சிவசேனா, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகளும் பொதுநல அமைப்புகளும் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன. இதனைத் தொடர்ந்து உத்தவ் தாக்கரே, ராஜ் தாக்கரே ஆகியோர் இன்றைய தினம் போராட்டம் நடத்தப் போவதாக அறிவித்திருந்தனர். கடும் எதிர்ப்பு நிலவியதை தொடர்ந்து கடந்த வாரம் 2 அரசாணைகளை பாஜக அரசு ரத்து செய்தது. குறிப்பாக பள்ளிகளில் 3வது மொழியாக இந்தியை திணிக்கும் அந்த 2 முக்கிய மசோதாக்களும் அரசாணைகளும் ரத்து செய்யப்பட்டன. இதனைத் தொடர்ந்து இன்றைய தினம் வெற்றி கொண்டாட்டமாக சிவசேனா கட்சி சார்பாக கொண்டாடப்படுகிறது. குறிப்பாக உத்தவ் தாக்கரே, ராஜ் தாக்கரே ஆகியோர் இணைந்து இன்று போராட்டம் நடத்துவதாக அறிவித்திருந்த நிலையில் அரசாணை ரத்து செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து தற்போது அதனை வெற்றி கொண்டாட்டமாக மாற்றி இருக்கிறார்கள். அந்த வெற்றி கொண்டாட்டங்கள் தான் தற்போது மும்பையில் நடைபெற்று வருகிறது. கிட்டத்தட்ட 20 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு 2 பேரும் ஒரே மேடையில் ஒன்றாக தோன்றி இந்த போராட்டத்தை அதாவது வெற்றி கொண்டாட்டமாக மாற்றி அதனை தற்போது பொதுக்கூட்டமாக நடத்தி வருகிறார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆகவே இந்த இந்தி எதிர்ப்பு என்பது பல்வேறு மாநிலங்களவில் நிலவி வரக்கூடிய சூழ்நிலையில் பாஜக ஆளக்கூடிய மகாராஷ்டிராவிலேயே தற்போது அதனை அமல்படுத்த முடியாத நிலை ஒன்றிய அரசுக்கும் பாஜக மாநில அரசுக்கும் ஏற்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. பவித்ரா, இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தை வெற்றி போராட்டமாக மாற்றியிருக்கிறார்கள் தாக்கரே சகோதரர்கள் என்ற தகவலை வழங்கியமைக்கு நன்றி பால்முருகன். तेव्हा तो केवळ वरवरचा धरून चालणार नाही. मधल्या काळामध्ये अगदी दोघांनी, म्हणजे मी काय, राजनैतिक आणि आपण सगळ्यांनी या नतद्रष्टांचा अनुभव घेतलेला आहे. वापरायचं आणि फेकून द्यायचं. आता आम्ही दोघं मिळून तुम्हाला फेकून देणार आहोत. आजपर्यंत वापर करून घेतलात. अरे डोक्यावरती जर का शिवसेना प्रमुख नसते तर तुम्हाला ओळखत कोण होतं या महाराष्ट्रामध्ये? कोणत्या भाषेत बोलत होतात? अगदी राज, तू सगळ्यांची शाळा काढली. मला एका प्रश्नाचं उत्तर पाहिजे. मोदींची शाळा कोणती? सगळ्यात उच्च शिक्षित आहेत. पण हे जे काय यांची मध्यंतर मी बोललो ना, भाजप ही अफवांची फॅक्टरी आहे. मधल्या काळात त्यांनी सुरू केलं होतं. उद्धव ठाकरेने हिंदुत्व सोडलं. हिंदुत्व ही कोणत्याही भाषेची मक्तेदारी नाही. आम्ही अस्सल मराठी बोलणारे तुमच्यापेक्षा जास्त कडवट कट्टर देशाभिमानी हिंदू आहोत.
तुम्ही काय आम्हाला हिंदुत्व शिकवताय? अरे 92-93 साली जेव्हा जे काय घडलं, देशद्रोही मातले होते, तेव्हा मुंबईतल्या अमराठी लोकांना सुद्धा हिंदू म्हणून माझ्या शिवसैनिकांनी, शिवसेना प्रमुखांच्या शिवसैनिकांनी व मराठी माणसांनी वाचवलेलं आहे. आणि देवेंद्र फडणवीस आज जे बोललेत, बातमी आले सगळीकडे, मी इकडे बातम्या आणल्यात. भाषेच्या नावाखाली गुंडगिरी सहन केली जाणार नाही. जर महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणूस न्याय मागण्यासाठी आंदोलन करत असेल आणि त्याला जर का तुम्ही गुंड म्हणत असाल, तर आम्ही गुंड आहोत. आम्ही गुंड. न्याय मागणं म्हणजे गुंडगिरी नाहीये. आणि जर का गुंडगिरी केल्याशिवाय तुमच्या दरबारी न्याय मिळत नसेल, तर आम्ही गुंडगिरी करूच. पण हे सगळे राजकीय वाडगे, देवेंद्र फडणवीसांची आजचं वक्तव्य म्हणजे मला संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या वेळेला सखा पाटलांनी केलेलं एक वक्तव्य आठवते. हे असेच तेव्हाचे, म्हणजे जो दिल्लीत बसतो त्याचे पाय चाटणारे इथले राज्यकर्ते असतात, ते त्यांना मी बाडगे म्हणतोय. कारण संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीमध्ये मुंबई आपल्याला आपण मिळवली. आपण म्हणजे आपण मराठी माणसांनी. तेव्हाही तत्कालीन जे सत्ताधारी होते, हो अगदी काँग्रेस होतीच ना तेव्हा सत्तेवर, मुंबई मराठी माणसाला द्यायला तयार नव्हती. आणि तेव्हा सुद्धा एक मराठी माणूस, म्हणजे आज जे बोलतात ना आम्ही मराठी नाहीत का, अरे तुम्ही नुसतं नावाने मराठी आहात, तुमच्या अंगात मराठी रक्त आहे की नाही आता तपासावं लागेल. आणि सखा पाटील बोलले होते, यावश चंद्र दिवाकरो, मुंबई महाराष्ट्राला मिळणार नाही. कशी नाही मिळत, झुकवलं, वाकवलं, गुडघ्यावरती आणलं मराठी माणसानी. आणि मुंबई आपल्या हक्काची, तुम्ही आता जी घोषणा घेतली ना, दिली ना, ती मुंबई आपल्या हक्काची आपण लढून आपण मिळून घेतली. कशासाठी हा सगळा तुम्ही घोळ घालतात? पण याच्या मागे मी जे माझ्या डोक्यात जो एक विचार आहे, पटतो की नाही बघा. हे यांचं सध्या जे काय चालू आहे, म्हणजे आधी आपल्याला सुद्धा वाटलं होतं. कारण तेव्हा काश्मीरमध्ये 370 कलम होतं, ते हटवण्यासाठी शिवसेनेने पाठिंबा दिला. आणि तेव्हा यांनी घोषणा दिली होती, एक निशाण, एक प्रधान, एक विधान. बरोबर आहे, देश एक असला पाहिजे, संविधान एक असलं पाहिजे, निशाण सुद्धा एकच, तो आपला तिरंगा असला पाहिजे. भाजपचं भांडी पुसायचं फडकं असतं कामा नये. ते फडकं म्हणजे आमचा राष्ट्रध्वज नाहीये. पण ते सगळं चाललंय एक 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 एक. त्याच्यानंतर आता नवीन एक तुमणं काढलं, 1 नेशन 1 इलेक्शन. म्हणजे हळुवारपणाने हे सगळं काही एक 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 करत, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदू आणि हिंदुस्तान मान्य आहे, पण हिंदीची सक्ती आम्हाला मान्य नाही. तुम्ही किती कमिट्या करा, हिंदीची सक्ती तुमचे 7 पिढ्या उतरल्या तरी आम्ही लावू देत नाही.